Hello everyone. In previous video we seen algae experiment जिसमें हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी स्टेप है जिससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिस्कवर हुई, राइट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिस्कवर बाय many scientists. There are almost 4 to 5 scientists discover photosynthesis process step by step with different example. Today we will move on our next topic. The topic name is where does photosynthesis take place? कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ होती है पर्टिकुलर सेल में, वो आपको पढ़ना है. यू ऑल आर अवेयर अबाउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, बट वेयर इट इज टेक प्लेस वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट इज डन इन any organelle which are double membrane bound organelle, which is already you study in chapter number 8, that is called chloroplast. You can see here chloroplast, right? Chloroplast, that is the double membrane bound structure, outer membrane, inner membrane. Then you can see this is grana, right? One grana bind to another grana by stromal lamellae. Then stroma, that is the region where ribosome and liquid medium present in that region, that is called stroma, and mostly process occur in stroma part of chloroplast. Then starch granules, food reserve material in form of starch granule present in chloroplast. Then lipid droplets, that is lipid present in form of lipid droplets, right? So this is the structure of chloroplast that you already study in chapter number 8. First कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो पर्टिकुलर आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो ग्रीन रीजन में होती है, कि प्लांट के जो भी ग्रीन रीजन होते हैं वहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, क्योंकि ग्रीन रीजन में ही पिगमेंट प्रेजेंट होती है, राइट. सो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज वाई. बट पर्टिकुलर प्लांट में कौन से ग्रीन पार्ट में ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. तो फॉर एग्जांपल ये कोई लीफ है, आपको पता है ये लीफ होता है, राइट. और उसमें ये जो रीजन है दैट इज कॉल्ड मेसोफिल्स, राइट, दैट इज कॉल्ड मेसोफिल्स. एंड दिस, इसको हम बोलेंगे मेसोफाइल्स or we can say mesophil, and each mesophil possess mesophil cells. कि ये जो रीजन है इसमें बहुत सारे सेल होंगे, क्योंकि मेसोफिल वन काइंड ऑफ टिश्यू. सो टिश्यू क्या कंबाइन होके बनती है, सेल्स. सो फॉर एग्जांपल इसको हम जूम करें तो इसमें ऐसा सेल हो सकता है, मेसोफिल टिश्यू में ऐसा सेल हो सकता है. तो उसमें पेरिफेरल मैनर में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट ऐसे लोकेट हुए होते हैं, राइट. पेरिफेरल मैनर में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट लोकेट हुए होते हैं. एंड दैट इज वाई मेसोफिल टिश्यू में, लीफ की मेसोफिल टिश्यू में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्पेशली होती है. दूसरा कि इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देयर आर 2 रिएक्शन अकर. light reaction and black reaction, sorry, dark reaction. डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि वो ब्लैकमैन ने डिस्कवर की है. उसका डिफरेंस देखते हैं हम. लाइट रिएक्शन
occur in, or we can say require light. Dark reaction do not require light. Next, सेकेंड टॉपिक क्या आएगा? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट रिएक्शन carbon dioxide and sugar in form of glucose synthesized by enzymatic action. And यहाँ ATP and NADPH will be synthesized. Right? So this is the difference between light reaction and dark reaction. आपको बुक में नहीं दिया है बट आपको याद रखना है. Let us explain where does photosynthesis take place. You would of course answer कि आपके पास आंसर होगा in the green leaf or in chloroplast based on what you earlier read in chapter number 8. You are definitely right, definitely you are right कि आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ चुके हो. Photosynthesis does take place in green leaves of plants, but it does show also in other green parts of the plant. कि वो green leaves में तो होता है but other green parts जो होते हैं plant के उसमें भी होता है. So कौन से part होते हैं? You would recollect from previous unit that the mesophyll cells in the leaves have a large number of chloroplasts. Usually the chloroplasts align themselves along the wall of mesophyll cell, right? मैंने आपको डायग्राम में ऐसे समझाया था कि जो सेल वॉल होती है उसके along ही वो लोकेट हुए होते हैं, right? Such that they get the optimum quantity of the incident light. Means what? कि वो पेरिफेरल मैनर में इसीलिए लोकेट हुए होते हैं जिससे लाइट अच्छे से मिले उनको. When do you think the chloroplasts will be aligned with their flat surface parallel to the wall? Right? You have studied the structure of chloroplast in chapter number 8. Within the chloroplast, there is membranous system consisted of grana, the stroma lamellae, and matrix stroma. You can see in this diagram. There is a clear division of labor within the chloroplast कि उनका जो labor division है वो clear होता है. The membrane system is responsible for trapping the light energy and also for the synthesis of ATP and NADPH. कि लाइट एनर्जी ट्रैप करेंगे और ATP and NADPH सिंथेसाइज करेंगे. सो इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक एक्शन सिंथेसाइज शुगर विच इन टर्न फॉर्म्स स्टार्च. कि शुगर सिंथेसाइज होगी वो स्टार्च में कन्वर्ट होगी. एंड द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्राइवन आर कॉल्ड लाइट रिएक्शन. दैट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन. की फोटोन की प्रेजेंस में लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, सिंथेसाइज होता है शुगर. दैट इज वाई दिस रिएक्शन नोन एज लाइट रिएक्शन विच इज अकर इन स्ट्रोमा रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. The latter are not directly light driven but are dependent on the product of light reaction. कि उसके बाद जो भी रिएक्शन होती है वो लाइट में नहीं होती है बट दे प्रोसेस डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. की लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिपेंड होती है एंड दे सिंथेसाइज ATP and NADPH. Hence, to distinguish the
later they are called by convention dark reaction, that is called carbon reaction, right? So however, this should not be construed to mean that they occur in darkness or that they are not light dependent, right? दोनों में प्रोसेस हो सकती है, डार्क में और लाइट में. ओके, अब हम देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस. कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो होती है बट उसमें पिगमेंट रिक्वायर है. बहुत सारे पिगमेंट जो है वो आपको पढ़नी है और वो आपको अच्छे से याद रखनी है. फ्यूचर में भी वो पिगमेंट्स के बारे में आपको समझना है. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, बहुत सारे, बट आपके सिलेबस में सिर्फ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स है जो आपको समझनी है. एंड विच आर पजेस इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड वी कैन डिफ्रेंशिएट इट और वी कैन से सेपरेट इट बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी. और इसीलिए आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी का एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल है. ओके, सो लेट इट स्टार्ट. लुकिंग एट प्लांट्स, have you ever wondered why and how there are so many shades of green in their leaves? आपको पता है कि ग्रीन लीव्स में भी बहुत सारे शेड्स होते हैं, ऐसा क्यों है? We can look for an answer to this question by trying to separate the leaf pigment of any green plants through paper chromatography. See, आपको यहाँ बोल दिया है कि we can separate the leaf pigment of any green plants through पेपर क्रोमेटोग्राफी. पेपर क्रोमेटोग्राफी का पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए एक पेपर आता है जिसको आपको ग्रीन पार्ट्स लेना होता है प्लांट का और उसको थोड़ा बॉईल करके उसको कद्दू क्रश करके उसका फिल्टर करना होता है. और जो फिल्ट्रेट आपको मिला नीचे की तरफ लिक्विड, वो एक वेसल्स में भर दो और वीकेंड से बीकर में भर दो और उसके बाद उसके ऊपर पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो पेपर आता है वो आप अगर स्पिन करोगे, मतलब उसके ऊपर रखोगे, तो धीरे धीरे प्लांट्स के अंदर जो भी पिगमेंट्स होती है उसका कलर इंडिकेट के साथ वो रन होता है. वो पूरा एक्सपेरिमेंट है, आपको मैं बाद में समझाऊंगी, राइट? अभी थियरी में हम देख लेते हैं पिगमेंट. सो इतना याद रखो कि पिगमेंट का सेपरेशन पेपर क्रोमेटोग्राफी थ्रू होता है. अ क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ द लीफ पिगमेंट शोज दैट द कलर दैट वी सी इन लीव्स इज नॉट ड्यू टू अ सिंगल पिगमेंट बट ड्यू टू 4 पिगमेंट. कि लिप्स में जो कलर होते हैं वो सिंगल पिगमेंट्स पे नहीं, 4 पिगमेंट्स से होते हैं. फर्स्ट इज क्लोरोफिल ए विच आर ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर, देन क्लोरोफिल बी दैट इज येलो ग्रीन कलर, देन ज़ैंथोफिल येलो कलर एंड कैरोटीनॉइड्स दैट इज येलो टू ऑरेंज कलर. सो इसके कलर याद रखने हैं कि क्लोरोफिल ए ब्लूइश ग्रीन है, क्लोरोफिल बी येलोइश ग्रीन है, ज़ैंथोफिल येलो कलर है एग्जैक्टली एंड कैरोटीनॉइड येलो टू ऑरेंज कलर के होते हैं. Let us now see what role various pigments play in photosynthesis. Pigments are substances that have an ability to absorb light at specific wavelength. कि हर एक पिगमेंट जो होती है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करती है. यहाँ आपको दिए हैं डिफरेंट चार्ट. यहाँ फर्स्ट है एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, कि कैसे डिफरेंट लाइट जो सनलाइट में से आती है वो एब्सॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, राइट? उसके कलर इंडिकेट के साथ ही आपको कलर दिए हैं. क्लोरोफिल ए दैट इज ब्लूइश ग्रीन कलर, देन क्लोरोफिल बी दैट इज येलो ग्रीन कलर एंड उसके बाद कैरोटीनॉइड दैट इज येलो टू ऑरेंज कलर. उसके बाद का जो लेवल दिया है, ग्राफ दिया है, दैट इज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर बाय ऑक्सीजन रिलीज. की जितने ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होंगे उतना फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा.
राइट। और उसके बाद है लाइट एब्जॉर्ब की, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट एब्जॉर्ब होती है उसके अकॉर्डिंग कि एब्सॉर्प्शन कितना है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना है वो आपको दिया है। तो आप देख सकते हो कि 650 और 700 नैनोमीटर जितनी वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, तब उनका जो रेट होता है वो हाई मिलता है। Can you guess which is the most abundant plant pigment in the world? Let us study the graph showing the ability of chlorophyll A pigment to absorb lights of different wavelength. जो आप फिगर 13.3a में दिया है, राइट, क्लोरोफिल A दैट इज क्लोरोफिल A का पीक अच्छा है और B का भी पीक अच्छा है, राइट, एब्सॉर्प्शन का। ऑफ कोर्स you are familiar with the wavelength of visible spectrum of light as well as Vibgyor means जो बोलते हैं ना वायलेट, इंडिगो, राइट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वो आपको पता ही है। फ्रॉम फिगर 13.3a दिस इज a, right, 13.3a. Can you determine the wavelength color of light at which chlorophyll A shows the maximum absorption, right? Does it show another absorption peak at any other wavelength too? If yes, which one? आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको दिया है 13.3a ग्राफ शोइंग द एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल A, B and carotenoid. Then 13.3b that is graph showing action spectrum of photosynthesis, right, ये वाला। And last one, this one is graph showing action spectrum of photosynthesis superimposed on absorption spectrum of chlorophyll A. Okay, now look at 13.3b showing the wavelength at which maximum photosynthesis occur in plant. आप देख सकते हो यहाँ ये जो पीक है दैट शोइंग मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन, सॉरी, मैक्सिमम photosynthesis, right, occur in plant. Can you see that the wavelength at which there is maximum absorption by chlorophyll A? It means in the blue and red region. आप देख सकते हो कि ब्लू एंड रेड रीजन में क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन होता है। Also shows higher rate of photosynthesis. Hence, we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis. अंडरलाइन करो, याद रखना है आपको ये, क्लोरोफिल A is the chief pigment associated with photosynthesis. But by looking at figure 13.3c, ये जो फिगर है, राइट, उसको देख के क्या लगता है, वो बोला है आपको that there is a complete one-to-one overlap between the absorption spectrum of chlorophyll A and the action spectrum of photosynthesis, right? So these graphs together shows that most of photosynthesis take place in the blue and red region. Most photosynthesis take place in blue and red region of spectrum. Some photosynthesis does take place at the other wavelength of the visible spectrum. Let us see how this happen. Through chlorophyll is the major pigment responsible for trapping light. आपको पता है chlorophyll that is major pigment for trapping light, right, and other thylakoid pigment like chlorophyll B, other thylakoid pigment like chlorophyll B, xanthophyll and carotenoid,
which are called accessory pigment. Main pigment, that is chlorophyll A, and chlorophyll B, xanthophyll and carotenoids, that is the accessory pigment. Also absorb light and transfer the energy to chlorophyll A. कि मेन पिगमेंट भले ही ना हो फिर भी वो तीनों तीन पिगमेंट लाइट को एब्सॉर्ब करेगी और क्लोरोफिल ए को वो ट्रांसफर करेगी. इन नीड दे not only enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis but also protect chlorophyll A from photooxidation. Photooxidation means what? तो ज़्यादा लाइट अगर मिलती है क्लोरोफिल को, पिगमेंट को, इफ़ क्लोरोफिल गेट मोर लाइट इंटेंसिटी, that composition will be degrade, means के degradation of chlorophyll in presence of more light. कि ज़्यादा लाइट पड़ने से क्लोरोफिल का जो कंपोजिशन है वो बिगड़ जाता है, डिग्रेड हो जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट, दैट इज़ कॉल्ड फोटो ऑक्सीडेशन. कि फोटोन की प्रेजेंस में उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उनका जो कंपोजिशन है वो बिगड़ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फोटो ऑक्सीडेशन. क्लियर? समझ में आएगा? तो आज हम दो टॉपिक पढ़े हैं. First is where does photosynthesis take place, right? And second is how many types of pigment are involved in photosynthesis. Okay. In next video we seen what is light reaction. Light reaction क्या है वो हम देखेंगे and the electron transport system देखेंगे. Okay. So in next session we will see what is light reaction.